study chapter 4. Our chapter 4 name is How Plants Survive. Explores. First is habitat. Second is surviving in the desert. Third is surviving in the cold. Fourth is surviving in the plains. Fifth is surviving in the marshy areas. Sixth is surviving in water. Seventh is plant of the grass family, means creepers. Next is some other interesting plants. And last is useful plants. Given below are names of 3 common plants and pictures of 3 natural surroundings. आपको नीचे 3 कॉमन प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और नीचे 3 नेचुरल सराउंडिंग्स की पिक्चर भी दे रखी है. मैच ईच प्लांट टू द प्लेस वेयर यू थिंक इट ग्रोज. आपको इन प्लांट को इनके प्लेसेस से मैच करना है कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ग्रो होते हुए कहाँ पर उगते होंगे. वन हैज बीन डन फॉर यू और एक आपको करके भी दिखा रखा है. लाइक दैट कैक्टस प्लांट grows in desert. Similarly, lotus plant grows in water and mango trees grows in garden. Let us start by learning about different plants and their natural surroundings. चलिए पढ़ते हैं अलग अलग प्लांट्स के बारे में, उनके अलग अलग नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में. Habitat. Plants are found almost in all parts of the earth. जो plants हैं वो लगभग अर्थ के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं. They grow in places where sunlight and water are available. वहाँ पर उन जगहों पर ग्रो होते हैं जहाँ पर सनलाइट और वाटर अवेलेबल होता है. प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर. प्लांट्स है लैंड पर भी पाए जाते हैं और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. दोज दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. वे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल एंड aquatic are examples of habitats or places where plants live. Terrestrial और aquatic दोनों ही एग्जाम्पल है हैबिटेट्स के या फिर उन जगहों के जहाँ पर प्लांट्स रहते हैं, ग्रो होते हैं. मार्क T for terrestrial habitats and A for aquatic habitats. आपको T उस पर मार्क करना है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है और A उस पर मार्क करना है जो aquatic हैबिटेट्स है. फर्स्ट इज माउंटेन. माउंटेन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सेकंड इज सी. Sea is aquatic habitat. River is also an aquatic habitat. Ocean is also an aquatic habitat. Desert is terrestrial habitat. Pond is aquatic habitat and seashore is a terrestrial habitat and place is also a terrestrial habitat. Plants growing in different conditions of climate, soil and water must change themselves to better survive in their particular environment. जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग कंडीशंस में, क्लाइमेट की अलग अलग कंडीशंस में ग्रो हो जाते हैं, सॉइल या वाटर में, तो वे खुद पे चेंज कर लेते हैं अपने बेटर सर्वाइव के लिए जहाँ पे भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वे रहते हैं. तो डेजर्ट प्लांट्स मस्ट हैव फीचर्स टू सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर व्हाइल एक्वेटिक प्लांट्स मस्ट हैव सीड्स कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम रोटिंग. तो डेजर्ट प्लांट्स के पास फीचर्स होते हैं जिस वजह से वे कम पानी में भी सर्वाइव कर सकें, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स के पास ट्रेड्स होते हैं जिस वजह से वे अपने आप को रोटिंग होने से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. The ability to adjust to environment conditions in order to increase chances of survival is called adaptation. वो एबिलिटी जिसमें हम environment conditions को adjust करते हैं सर्वाइवल चांसेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको हम adaptation बोलते हैं. Next is terrestrial plants. Terrestrial plants are found in deserts on mountains, in plains and marshy places. Terrestrial plants हैं वो deserts में, mountains और plains में, marshy places वगैरह पर पाए जाते हैं. Surviving in the desert. Desert is a hot and dry place. Desert काफी hot और dry place है. There is very little rainfall in deserts. Deserts में काफी कम rainfall भी होती है. Water is available to desert plants mostly in the form of dew early in the morning. जो water है वो desert plants में available होता है dew early की form में, morning के time पर. Dew settles on the sand for a short while before it disappears due to heat. तो dew settle होते हैं वो sand में settles हो जाते हैं नीचे कुछ टाइम के लिए और फिर बाद में जब सन की हीट पड़ती है तो उस दौरान भी गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं. गिवन बिलो आर 3 फैक्ट्स. रीड देम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे आपको 3 फैक्ट्स से रखें, आपको उनको रीड करना है, जैसे उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी देने हैं. दिस पिक्चर शोज एडेप्टेशन इन कैक्टस, अ डेजर्ट प्लांट. फर्स्ट इज प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स. जो प्लांट्स हैं वो पानी को लूज करते हैं अपने लीव्स के थ्रू. सेकेंड इज प्लांट्स absorb water from the ground through their roots. तो प्लांट्स हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड में से अपने रूट्स के थ्रू.
थर्ड इज प्लांट स्टेम कैन बिकम थिक एंड जूसी टू स्टोर वाटर। जो प्लांट स्टेम होती है वो काफ़ी थिक होती है, जूसी होती है, जो पानी को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स वर्क इन ग्रुप्स। इन गिवन फैक्ट्स के बेस पर आपको ग्रुप में वर्क करना है और सजेस्ट। ए इज हाउ डेजर्ट प्लांट्स कैन रिड्यूस वाटर लॉस। कैसे डेजर्ट प्लांट है वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। बी इज व्हाट काइंड ऑफ रूट्स, डीप और शैलो, वुड बी सुटेबल इन डेजर्ट। डेजर्ट में कौन से तरह के रूट्स सही रहते हैं, डीप या फिर शैलो। सी इज वे हैव गुड डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो पानी को कहाँ पर स्टोर करते हैं। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। जो कैक्टस है वो डेजर्ट प्लांट है। द लीव्स ऑफ कैक्टाई टर्न इनटू स्पाइन्स और थॉर्न्स। जो लीव्स होती है कैक्टाई की वो स्पाइन्स और थॉर्न्स में बदल जाती है। सो दैट देयर इज वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू देम। तो इनके थ्रू जो काफ़ी कम पानी का लॉस होता है। देयर रूट्स आर शैलो टू एब्जॉर्ब ड्यू क्विकली। इनकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती है, जिस वजह से ये ड्यू को आसानी से जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। कैक्टाई हैव जूसी एंड थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। कैक्टाई के पास जूसी और थिक स्टेम्स होती है जो पानी को स्टोर करके रखती है। सर्वाइविंग इन द कोल्ड इन हिल्स एंड माउंटेन्स इट इज़ वेरी कोल्ड। सर्दियों के टाइम पे हिल्स और माउंटेन्स में काफ़ी ठंड होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस मस्ट अडैप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव द कोल्ड एंड स्नोफॉल। ये प्लांट्स जो जगहों पर रहते हैं, ग्रो होते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन जगहों पर, कोल्ड पर या फिर स्नोफॉल वगैरह में। पाइन, स्प्रूस, केडर एंड फिर आर सम ट्रीज ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस। यहाँ पर कुछ ट्रीज के नेम भी रखे हैं जो ठंडी जगहों पर उगते हैं, ग्रो होते हैं। These trees are also known as conifers. इन trees को हम conifers भी बोलते हैं। They produce cones instead of flowers. ये flowers की जगह cones को produce करते हैं। The cones have seeds. उन cones में seeds भी होते हैं। They are evergreen as they bear leaves throughout the year. ये evergreen होते हैं पूरे साल। ये पूरे साल इनमें नई पत्तियां आती रहती हैं। The triangular shape of fir and pine trees allows snow to slide off them easily. जो triangular shape होती है फिर और pine trees की वे allow करते हैं कि जो इसमें से स्नो है वो आसानी से रपट जाए, स्लाइड हो जाए। दिस प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ ब्रांचेस एंड फ्रीजिंग अप टू द ट्री। प्रिवेंट्स करते हैं, बचाते हैं ब्रांचेस को फ्रीजिंग होने से, ट्री को ब्रेकेज होने से। द लीव्स आर निडल लाइक। जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स प्रिवेंट्स स्नो फ्रॉम क्रैकिंग ऑन लीव्स। जो वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स पर वो उनको बचाती है स्नो से कि लीव्स पर वे कलेक्टिंग ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए। कॉनिफर्स हैव डीप रूट्स टू एंकर डैम टू हिल साइड्स। कॉनिफर्स के पास काफ़ी डीप रूट्स होती है उन अपने आप को एंकर करने के लिए हिल साइड्स की तरफ। दिस स्टेम इज वुडी एंड ब्राउन। जो स्टेम होती है वुडी और ब्राउन होती है। दिस पिक्चर शोज पाइन ट्री सर्वाइविंग इन द प्लेन्स। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज वार्म। जो क्लाइमेट होता है प्लेन्स का वार्म होता है। ट्रीज लाइक मैंगो, बैनियन एंड ग्रोइंग प्लेन। ट्रीज जैसे कि मैंगो, बैनियन प्लेन्स में ग्रो होते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं टाइम पर कोल्ड से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर कोल्ड deciduous trees। हम deciduous trees भी बोलते हैं। some trees like coconut, rubber, teak can grow in hot and wet climate। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जैसे कोकोनट, रबर, टीक, शुगर की, ये हॉट और वेट क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। दे आर एवरग्रीन ट्रीज सो डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। ये एवरग्रीन ट्रीज है, ये सर्दी में भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं। दिस पिक्चर शोज मैंगो ट्री। Rainforests that grow in caves. A rainforest is a warm region and gets heavy rains from the east. Forest है वो warm region है और पूरे साल वहाँ पर बारिश ही होती रहती है। Rainforests have a thick growth of plants allowing less sunlight to reach the floor of the forest during the day। रेन फॉरेस्ट है वो काफ़ी थिक ग्रोथ है, वहाँ पर प्लांट्स भी अलाउ करते हैं कम सनलाइट वहाँ तक पहुँच पाए उस फॉरेस्ट फ्लोर पर दिन के दौरान। Therefore, most trees in the rainforest grow very tall। इस वजह से काफ़ी सारे ट्रीज ऐसे हैं रेनफॉरेस्ट के जो काफ़ी लंबे लंबे ग्रो होते हैं, टॉल ग्रो होते हैं। Some plants climb on trees to reach sunlight available at the top। कुछ प्लांट्स क्लाइम कर जाते हैं ट्री पर सनलाइट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो सनलाइट है वो टॉप पर ऊंचाई पर अवेलेबल होती है। प्लांट्स लिविंग इन रेनफॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फ्लोडिंग। जो प्लांट्स रेनफॉरेस्ट वगैरह में उगते रहते हैं अडेप्टेड हो जाते हैं फ्लोडिंग की। मोस्ट प्लांट्स हैव अ स्मूथ स्टेम व्हिच अलाउज वाटर टू क्विकली फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड। काफ़ी सारे प्लांट्स की स्मूथ स्टेम होती है जो अलाउ करती है पानी को कि वो क्विकली ग्राउंड पर फ्लो हो जाए, बह जाए। दी लीव्स हैव अ वैक्सी सरफेस एंड ड्रिप टिप्स। लीव्स के पास काफ़ी वैक्सी सरफेस होता है, ड्रिप टिप्स भी होती है। दे डू नॉट होल्ड वाटर बट मेक रेन ड्रॉप्स रन ऑफ क्विकली। तो पानी को होल्ड करके तो नहीं रखते हैं, लेकिन रेन ड्रॉप्स को, जो बारिश की बूंदें होती है, उनको क्विकली रन करवा देते हैं। दिस पिक्चर शोज रेन फॉरेस्ट।
Next is deciduous forest that grow in plains. In deciduous forest, it is hot in summer with lots of rain, very cold in winter. Deciduous forest में गर्मियों के टाइम पर काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी हॉट होता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है और सर्दियों के टाइम पर cold होता है, काफ़ी धूप होती है. Big tall trees grow here. काफ़ी बड़े-बड़े लंबे पेड़ उगते हैं, ग्रो होते हैं. Smaller plants that are shade tolerant grow low. These big trees, छोटे-छोटे प्लांट्स जो होते हैं shade tolerant वाले, वो बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे ग्रो होते हैं. The forest floor is covered with many kinds of herbs. जो फॉरेस्ट का फ्लोर्स है वो काफ़ी अलग-अलग तरीके के हर्ब से कवर्ड हुआ हुआ है. To withstand the cold winter, the trees have a thick bark. कोल्ड विंटर कंडीशन में करने के लिए ट्रीज के पास स्टेम होती है थिक बार्क के साथ. The leaves are thin and broad and are able to capture low. जो लीव्स होती है वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी होती है, सक्षम होती है कि वह काफ़ी ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सकें. ड्यूरिंग विंटर द ट्रीज शेड देयर लीव्स. सर्दियों के दौरान लीव्स हैं वो शेड हो जाती है ट्रीज वगैरह की. न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन समर. और फिर जो नई लीव्स होती हैं वो दोबारा से समर में मतलब उगती है, ग्रो होती है. Picture shows deciduous forest. Next is surviving in marshy areas. The soil is very sticky in marshy areas and with plenty of water in it. जो soil होती है marshy areas की वो काफ़ी sticky होती है और वहाँ पर plenty of water भी होता है उनमें. This prevents the air to get into the roots of plants. ये prevent करते हैं air को कि वो roots plants के roots तक पहुँच जाए. Many trees called mangroves grow in marshy areas. काफ़ी सारे trees हैं जिनको mangroves बोलते हैं, marshy areas में ही grow होते हैं. They have aerial roots or breathing roots which grow out of the water. इनके पास एरियल रूट्स होती हैं, फिर ब्रेथिंग रूट्स होती हैं जो वाटर के बाहर भी ग्रो आउट हो सकते हैं, उग सकते हैं. दिस वे द रूट्स गेट सफिशिएंट टू ब्रेथ. इस तरीके से उन रूट्स को काफ़ी सारी एयर मिल जाती है ब्रेथ लेने सांस लेने के लिए. सच शो मैंग्रोव. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. कलेक्ट 4 or 5 fallen leaves from different plants. आपको अलग अलग प्लांट से 4-5 गिरी हुई पत्तियां कलेक्ट करनी है. प्लेस देम इन अ मग ऑफ वाटर फॉर अ फ्यू डेज. आपको उन पत्तियों को एक मग में डालना है जो दवा हो उस मग के अंदर कुछ दिनों के लिए. टेक देम आउट एंड ऑब्जर्व. तो बाहर निकालना है, ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट इज हाउ डू दे स्मेल, गुड बैड. आपको बताना उसमें कैसे स्मेल आएगी, गुड या फिर बैड. सेकंड इज हैव दे रूटेड, यस और नो. आपको बताना कि उनमें रूटेड आ गए हैं, ऐसे या फिर नो. एक राइट द करेक्ट ऑप्शन जो भी ऑप्शन ठीक है उसको आपको टिक करना है. कीपिंग लिव्स इन वाटर. आपको उन लिव्स को रखना है. फर्स्ट इज कीप्स देम फ्रेश. क्या वे फ्रेश रहेंगी. सेकंड इज हैज नो इफेक्ट ऑन देम. क्या उन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. थर्ड इज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग. क्या आप इन पत्तियों को पानी के अंदर डालते हैं क्या वो सूखने से बचाएंगे, प्रिवेंट होंगे. लास्ट इज मेक देम रोट. क्या वे उनको रोट कर देंगी, उनको सड़ा देंगी. जो भी आपको लगता है इसमें आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर आपको टिक करना है. Next is aquatic plants surviving in water. Aquatic plants adapt themselves to survive in water. Aquatic plants होते हैं वो अपने आप को adapt कर लेते हैं survive करने के लिए. Their leaves have a waxy coating so that water does not stick to them. जब leaves पर waxy coating होती है जिस वजह से जो पानी है वो उन पर stick नहीं होता है. Aquatic plants have spongy stem that can trap air. Aquatic plants spongy stem भी होती है जो air को trap कर लेती है. They have special types of roots. उनके पास special types की roots भी होती हैं. पेट्रोलियम जेली इज वैक्सी एंड वाटरप्रूफ. पेट्रोलियम जेली होती है वो वैक्सी होती है, वाटरप्रूफ होती है. इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द लीव्स एंड प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रॉटिंग द लीव्स. वो एक थिन लेयर की फॉर्म होती है जो लीव्स के ऊपर होती है और वो बचाती है लीव्स को रोटिंग होने से. एक्वेटिक प्लांट्स नेचुरली हैव अ वैक्सी कोटिंग टू कीप देम अवे फ्रॉम रोटिंग. एक्वेटिक प्लांट्स के पास नेचुरली एक वैक्सी कोटिंग होती है जो उनको रोटिंग होने से बचाती है. Aquatic plants are of 3 types. Aquatic plants 3 तरीके के होते हैं, floating, fixed and under water. First is floating plants. Water hyacinth is a floating aquatic plant. जो water hyacinth है वो floating aquatic plants है. Its roots do not anchor to the bottom of the water body. जो इसकी roots होती है वो water body में नीचे anchor नहीं हो पाती है. Floats are structures found at the base of leaves. जो floats है वो structures हैं जो leaves के base पर पाए जाते हैं. They have space to hold air. इनके पास काफी space भी होता है air को hold करने के लिए. This helps a plant to bob on water. तो प्लांट की हेल्प करता है वाटर में बॉब करने के लिए. This picture shows water hyacinth. This arrow shows flower. This is leaves. This is float and this is root. Next is fixed plants. Lotus and water lily are fixed or rooted aquatic plants. Lotus और water lily
bromeliads or rooted aquatic plants हैं. This means their roots reach down through the depth of to enter the bed to reach the water body. इसका मतलब ये है कि जो roots है वो काफी गहराई तक वाटर बॉडी के नीचे पहुंच जाती है उनसे थ्रू. लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. जो लीव्स होते हैं काफी ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है. दिस अलाउ देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जो कि अलाउ करती है उनको पानी के अंदर फ्लोट करने के लिए. दिस स्टेम हैज वास्ट एयर स्पेस इन टू हेल्प द प्लांट फ्लोट. इनके पास काफी एयर स्पेस होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट को फ्लोट करने में. दिस पिक्चर शोज लोटस स्टेम कट टू शो एयर स्पेसिंग. शो कर रखा है, लोटस स्टेम कट कर रखी है तो शो कर रहे हैं इनकी. दिस साइड shows air species. This picture shows lotus. This side shows flower. This is stem and leaf. Next is underwater or submerged plants. These plants grow underwater. Plants underwater grow होते हैं. They have narrow leaves with no pores. ये काफी narrow leaves होती हैं और इनमें कोई pores नहीं होते हैं. They breathe through their body surface and have to keep the water clean. ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू भी ब्रेथ लेते हैं और ये वाटर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond with the help of their roots. प्लांट्स होते हैं ये पॉन्ड के बॉटम में सबसे नीचे सॉइल में फिक्स हो जाते हैं अपनी रूट्स की हेल्प से. These plants are grown in aquarium. ये प्लांट्स एक्वेरियम में. This stem of these plants are very delicate and flexible due to air space. तो इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है इनकी एयर स्पेसेस की वजह से. These stem and leaves flow with the water current. जो स्टेम जो लीव्स होती हैं वाटर करंट की फ्लो होती हैं. सेब ग्रास, हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको इन प्लांट्स के. दिस पिक्चर शोज हाइड्रिला एंड दिस पिक्चर शोज सेब ग्रास. Plants of the grass family. Uses of grass plants. First is the grass plants provide food for human and animals. Grass plants होते हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को भी. Which is shows feed, which is rice, this is peas, and this is. Second is bamboo is a useful grass plant. Useful grass plant and it is used to make huts, baskets, chairs, mats, toys, brooms, etc. हम यूज करते हैं हर्ट्स, बास्केट्स, चेयर्स, मैट्स, टॉयज, ब्रूम्स इन सब चीज़ों को बनाने में. थर्ड पॉइंट, सम ग्रास प्लांट्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग. कुछ ग्रास प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम पैकिंग में यूज करते हैं. फोर्थ पॉइंट, ग्रास प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल इन सॉइल कंजर्वेशन. ग्रास प्लांट्स हैं वो काफ़ी यूजफुल भी होते हैं सॉइल कंजर्वेशन में. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सम ग्रास प्लांट्स हैव मेडिकल वैल्यू. कुछ ग्रास प्लांट्स के पास मेडिकल वैल्यू भी होती है. नो मोर. फर्स्ट इज पेपर वॉज फर्स्ट मेड फ्रॉम ग्रास कॉल्ड पेपरेस बाय पेपर्स. जो पेपर है वो सबसे पहले बार ग्रास से ही बना कर पेपर्स को बोलते हैं एक्सचेंज के द्वारा. इट इज वाई इट इज कॉल्ड पेपर. उसको पेपर बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज अ बैम्बू हाउस. सम अदर इंटरेस्टिंग प्लांट्स. insectivorous plants. Some plants like these Venus flytrap and the plant eat insects. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि Venus flytrap और pitcher plant ये इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं. They are usually found in areas are not enough nutrient soil for a healthy growth. ये वे प्लांट्स में ज़्यादातर इन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह इनफ नहीं होता है सोइल वगैरह में उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए. An insect sites on the Venus flytrap, the sensitive leaf strips the pair of leaves and they snap. जब इंसेक्ट्स बैठ जाता है विनस फ्लाइट्रैप पर तो जो सेंसिटिव लीफ स्ट्रिप्स होती है उसकी जो पेयर्स होते हैं लीव्स की वो एकदम से स्नैप करते हैं और कुछ कट कर लेते हैं मतलब बंद कर देते हैं. द इंसेक्ट्स गेट्स ट्रैप. उसके बाद जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है फंस जाता है. दिस पिक्चर शोज पिक्चर प्लांट एंड विनस फ्लाइट्रैप. बोथ पिक्चर शोज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Non-living plants. Some non-living plants grow on dead leaves and animals. कुछ non-living plants ऐसे होते हैं dead leaves and animals के grow होते हैं. They get their food nutrients from dead plants and animals, so they are called parasites. उनको उनका खाना जो न्यूट्रिशन होता है वो डेड प्लांट्स के एनिमल्स से मिलता है जिस वजह से हम उनको पैरासाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मशरूम. दिस पिक्चर शोज मशरूम. नेक्स्ट इज यूजफुल प्लांट्स. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. काफी यूजफुल होते हैं. एवरी डे वी यूज थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स इन सम फॉर्म और दी अदर. रोजाना हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो प्लांट से बने होते हैं और कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं और अदर फॉर्म भी होती हैं. कैन यू गेस 5 थिंग्स टुडे व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. क्या आप गेस करके कोई भी 5 चीज़ बता सकते हैं जो हमें प्लांट से मिलती है और उसका आपने आज यूज़ किया होगा.
First is we all depend on plants for food, fruits, vegetables, oil, sugar, creams, pulses, spices, etc. हम सभी plants पर depend अपने खाने के लिए, इसके लिए, oils के लिए, sugar के लिए, oils के लिए, pulses के लिए, nuts, spices के लिए. Tea, coffee and cocoa beans are also obtained from plants. Tea, coffee, cocoa beans जो होती हैं वो plants से obtained होती हैं. Second is soaps and shampoos and vegetable oils also come from plants. Soap और shampoo vegetable जो plants से मिलते हैं. Third is plant fibers like cotton and are used to make clothes, sacks and tops. प्लांट फाइबर जैसे कि कॉटन और जूट का हम यूज करते हैं क्लोथ्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, टैक्स बनाने में. फ्लैक्स इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट. तो फ्लैक्स है वो दूसरे तरीके का फाइबर है जो हमें प्लांट से ही मिलता है. फोर्थ इज कोकोनट प्लांट गिव्स कोकोनट ऑयल, कोकोनट पाउडर एज वेल एज फूड टू ईट. जो कोकोनट प्लांट है वो हमें कोकोनट ऑयल भी देता है, कोकोनट वाटर भी देता है और यहाँ तक हमें फ्रूट भी देता है खाने के लिए. फिफ्थ इज स्टेम्स ऑफ बैम्बू प्लांट आर यूज्ड टू मेक पेपर. जो स्टेम्स होती है बैम्बू प्लांट की उसका हम यूज करते हैं पेपर बनाने में. पेपर कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास लाइक प्लांट्स. पेपर है वो अलग अलग तरीके के ग्रास जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं उससे बनते हैं. The hollow stem or cane is used to make baskets, hearths, mats, furniture, walking sticks, curtains, etc. जो hollow stem होती है या फिर जो केन होती है हम यूज करते हैं बास्केट्स बनाने में, हर्ट्स बनाने में, मैट्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में, यहाँ तक कि चलने वाली स्टिक जो होती है वॉकिंग स्टिक बनाने में और कर्टेन्स बनाने में. Sixth is juice from the rubber tree is used to make rubber for tires, etc. तो जूस होता है रबर ट्री का उसका हम यूज करते हैं रबर बनाने के लिए, टायर्स वगैरह के लिए. Seventh is the juice of acacia. It means cut is used to make gum. जूस होता है acacia का मतलब फीकर प्लांट का उसका हम यूज करते हैं गम बनाने में. Eighth is trunks of trees like shisham, teak, sal give us food for making furniture, stores, windows, etc. जो ट्रंक्स होती हैं ट्रीज जैसे कि शीशम, teak, साल एक्सेट्रा ये हमें वुड देती है फर्नीचर बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए. Ninth is paint also contains substances obtained from plants. जो पेंट है वो भी substances contains करते हैं जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं. Tenth is many plants like eucalyptus, tulsi, cinona, neem, etc. give us important medicines. ये कुछ प्लांट्स दे रखे हैं. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट मेडिसिन भी देते हैं. This picture shows medicine, this rubber, this food. This picture shows paper, furniture, this is food. These pictures shows some of the things that give. वो पिक्चर्स दे रखे हैं आपको जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं उस देते हैं. Next is smart set. A is give two examples for each of the following. तो इन सबके दो एग्जांपल देंगे. First is floating plants, second is fixed plants, third is underwater plants, fourth is insectivorous plants and fifth is parasitic plants. इन सबके आपको दो एग्जांपल देने हैं. Next is please match the following. आपको इनको मैच करना है. आगे चलते हैं. Next है हमारा माइंड स्पार्कल. First is plants are found in terrestrial as well as aquatic. Plants हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यहाँ तक कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं. सेकंड इज प्लांट्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट. जो प्लांट्स होते हैं वो अडैप्ट कर लेते हैं अपने आप को जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं. दिस हेल्प्स इन देयर सर्वाइवल. जो हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल में. लास्ट थर्ड पॉइंट इज एडेप्टेशंस आर सीन इन प्लांट्स दैट सर्वाइव इन डेजर्ट एंड वाटर. एडेप्टेशंस हैं वो प्लांट्स में देखने को मिलता है जो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, कोल्ड रीजन में भी और वाटर में. दिस चैप्टर इज कंप्लीट.